Welcome student. Welcome to the session number 12. In the session number 12 we are discuss about the pointer, introduction of the pointer, advantage of using pointer, disadvantage of pointer, pointer to pointer, pointer and array, and pointer and string. Firstly we are discuss about the pointer. What is the pointer? Pointer is a variable which store the address of another variable. Means अगर आप किसी भी वेरिएबल का किसी भी इंटीजर वेरिएबल या फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं तो देन you must create the pointer. Means a pointer a variable which have capability to store the address of any another variable. Just see the example. Means here int k is the variable simple variable and int star ptr. Means when you want to create the pointer you just add the symbol star before creating the pointer, and then assign the value address of the pointer. Means just you press the ampersand symbol before assigning the value, before assigning the address of any other variable. Means अगर आप यहाँ पर k की एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं ptr में तो k से पहले आप क्या करिए, एम्परसेंड सिंबल यूज करिए. ये हमारा एम्परसेंड सिंबल बताता है कि एड्रेस ऑफ द वेरिएबल k. मीन्स द पॉइंट ptr इज pointer variable which store the address of k. Just see here a is the variable which store the value of 10 and the address of a is the 65,537, and the ptr is the pointer variable which store the address of variable a, means 65,537. Pointer are widely used in the programming. They are used to refer the memory location of another variable. Means जब भी हम पॉइंटर की बात करते हैं तो किसी दूसरे वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन को रेफर करता है. दे आर मेनली यूज इन द लिंक लिस्ट एंड द कॉल्ड बाय रेफरेंस फंक्शन. मीन्स हम पॉइंटर का यूज़ ज़्यादा लिंक लिस्ट में करते हैं, और अगर कॉल बाय रेफरेंस हम किसी फंक्शन को एज ए आर्गूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उस लोकेशन पे भी हम क्या करते हैं, पॉइंटर का यूज करते हैं. Just see the example. In the example, we create a variable a and create the pointer ptr, and we assign the value 20 to the variable a and the pointer address of the variable a. Means in the ptr we store the address of variable a. The value of a is the %d and a. The address of a is %u ptr and the value of a is ptr star ptr. Means when we access the value stored on the particular address then we use the star symbol followed by the pointer variable. Just see यहाँ पर क्या है, एक हमारे पास yptr ये हमारे पास वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या किया गया 100, और यहाँ पर एक पॉइंटर की स्टोर किया इसकी वैल्यू 1 है. मीन्स 100 पॉइंट्स द वैल्यू 1. एडवांटेज ऑफ पॉइंटर. अगर हम पॉइंटर क्रिएट करते हैं तो क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं. द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग पॉइंटर आर फंक्शन कैन रिटर्न मोर देन वन वैल्यू, but when the same function can modify many pointer variable and function as if it is returning more than one variable. In the case of array we can decide the size of the array at runtime by allocating the necessary space. Means अगर मैं किसी वेरिएबल का रन टाइम पे इस स्पेस को असाइन करना है, स्पेस को इंक्रीज करना है या फिर डिक्रीज करना है तो क्या कर सकते हैं, हम पॉइंटर का यूज कर सकते हैं. डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इज पॉसिबल विद द पॉइंटर. मीन्स डीएमए यूज कर सकते हैं. पासिंग एरे एंड स्ट्रक्चर टू फंक्शन. किसी भी एरे में एरे और स्ट्रक्चर को एज ए आर्गूमेंट हम पास कर सकते हैं. पासिंग एड्रेस टू फंक्शन. मीन्स किसी फंक्शन में किसी वेरिएबल का एड्रेस को हम पास कर सकते हैं. क्रिएटिंग डेटा स्ट्रक्चर सच एज ट्री एंड लिंक लिस्ट. हम फंक्शन का यूज पॉइंटर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, लिंक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ट्री क्रिएट कर सकते हैं, ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं. मीन्स डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर हम क्रिएट कर सकते हैं. डिसएडवांटेज. इफ sufficient memory is not available during runtime for the storage of pointer the program may crash. अगर हमारे पास जितनी मेमोरी रन टाइम पे रिक्वायर्ड है अगर वो मेमोरी अवेलेबल नहीं होती तो आपका प्रोग्राम क्रैश कर सकता है एट द रन टाइम. बट दिस इज़ द लीस्ट पॉसिबल वे कि अगर हम बहुत कम कंडीशन होती है कि हमारे पास ये कंडीशन अकर हो. वाइड पॉइंटर. ठीक है, वाइड पॉइंटर कैंट बी डी रेफरेंस्ड. मीन्स हम इसकी वैल्यू को फिर से चेंज नहीं कर सकते.
पॉइंटर ऑफ ए पॉइंटर। सपोज करिए अभी तक मैंने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को किसी पॉइंटर में स्टोर किया, लेकिन इफ़ यू वांट टू स्टोर द एड्रेस ऑफ एनी अनदर पॉइंटर वेरिएबल देन यू मस्ट बी क्रिएट द पॉइंटर ऑफ ए पॉइंटर। मीन्स अगर एक वेरिएबल की वैल्यू को आपको स्टोर करना है किसी दूसरे वेरिएबल में पॉइंटर में, तो आपको क्या करना होगा कि पॉइंटर, आपको पॉइंटर ऑफ पॉइंटर मीन्स डबल पॉइंटर क्रिएट करना होगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर पहले एक पॉइंटर क्रिएट किया गया, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर असाइन किया, फिर इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर फाइनली असाइन किया, ठीक है। मीन्स ये हमारे पास ये वेरिएबल है x जिसकी वैल्यू मैंने b असाइन किया है, इसका एड्रेस 101 है। 101 मैंने एक पहला ptr b था जिसके मैंने 101 असाइन किया, मीन्स डायरेक्ट पॉइंटर हुआ। अब ये ऑलरेडी एक पॉइंटर है, इसका एड्रेस मैंने क्या किया, किसी थर्ड में ptr1 में असाइन किया, जो ptr1 हमारा क्या है, डबल पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है। If you want to create the double pointer, you just place the double star symbol by when you creating the pointer variable। मीन्स अगर आपको पॉइंटर वेरिएबल पॉइंटर ऑफ पॉइंटर क्रिएट करना है तो क्या करना होगा कि आपको डबल पॉइंटर सिंबल, डबल स्टार सिंबल पॉइंटर क्रिएट करने से पहले ऐड करना होगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अगर आप सिंबल a यूज करेंगे, वैल्यू प्रिंट करेंगे तो आपको 10 डिस्प्ले होगा। अगर ptr गिव द एड्रेस मीन्स str, ptr gives the value of a, pp give the address of the ptr and star pp give the address of a or value of ptr and double star pp gives the value of pointer variable a। pointer to array, a pointer which pointing to an array in which content is integer is known as the pointer to array। means हम क्या कर सकते हैं, किसी एक ऐसा पॉइंटर जिसकी वैल्यू हमारी इंटीजर हो उसको अगर हम पॉइंट करना चाहते हो तो हमारा क्या कहलाता है, पॉइंटर टू एरे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किया गया कि मैंने एक सिंपल सा इंटीजर एरे क्रिएट किया। इंटीजर एरे क्रिएट करने के बाद मैंने एक सिंगल सा पॉइंटर क्रिएट किया ptr। अब इस ptr मैंने क्या किया, एरे के एक पर्टिकुलर लोकेशन की वैल्यू को स्टोर किया। जैसे मैंने यहाँ पर एरे 0 की वैल्यू को स्टोर किया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, प्रिंट द एलिमेंट ऑफ फॉर एरे, ठीक है। मैंने एलिमेंट के लिए स्कैनफ किया, स्कैनफ करने के बाद सारी वैल्यू को असाइन किया। असाइन करने के बाद अब मैंने यहाँ पर क्या किया, पॉइंटर की लोकेशन को चेंज किया। जैसे यहाँ पर देखिए, फर्स्ट लोकेशन यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। फर्स्ट लोकेशन यहाँ पर स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद यू परसेंटेज, ये हर बार एक लोकेशन जैसे इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिक हमारे पॉइंटर की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, एड्रेस इंक्रीज करते चला जाएगा। हमारे पास एड्रेस ये है, इसके बाद फिर एड्रेस ये, फिर एड्रेस ये। मीन्स वी कैन इंक्रीज द एड्रेस and by using the address you can access the value stored on that address। pointer to array of string, pointer to array of string, a pointer which pointing to an array in which content is string is known as the pointer to string, ठीक है। अब यहाँ पर नोटेशन कैसे क्रिएट करेंगे, अगर हम किसी भी एक कैरेक्टर टाइप का एरे, कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर क्रिएट करते हैं जो कि किसी भी एरे को स्टोर करता है तो क्या करता है, हमारा पॉइंटर टू एरे होता है, एरे ऑफ स्ट्रिंग। जैसे मैंने यहाँ पर क्रिएट किया कैरेक्टर पॉइंटर, कैरेक्टर एरे 4 टाइप्स का, 4 डेटा एलिमेंट्स के लिए। ये क्या करेगा, सिंबल स्टार यूज करेगा, सी, जावा एंड एसक्यूएल, ठीक है। अब यहाँ पॉइंटर 4 का करेंगे तो एम्परसेंट एरे, ठीक है। तो ये क्या स्टोर करेगा, एरे में जो भी वैल्यू है सारी की वैल्यू स्टोर हो जाएंगे। जब मैंने इसको डिस्प्ले कराया परसेंटेज एस स्टार ptr, इसके बाद वैल्यू क्या स्टोर किया, 2 means the second value of the second location. In the second location array we store the Java, means the output of this program is Java. In this one ptr point to the array of string which size is 4। pointer to array of pointer to string, ठीक है। In this pointer to array and pointer to string point the array in which content are pointer to string, ठीक है। what will be the output of if execute the following code। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे कोड तो क्या आउटपुट आएगा, देखिए ये हमारे पास कोड है, ये हमारे पास कोड है स्टैटिक। मैंने कैरेक्टर किया, एक पॉइंटर क्रिएट किया 3 वैल्यू के लिए, मैंने मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यूज किया। फिर मैंने टाइप डिफ किया कैरेक्टर ptr 3 को, ठीक है। 3 करने के बाद मैंने ट्रिपल pp यूज किया। देन p1 यूज करने के बाद मैंने क्या किया, p1 में एम्परसेंट s यूज किया, p2 एम्परसेंट एंड p3 एम्परसेंट, मीन्स हर वैल्यू मैंने क्या किया, सिर्फ pt को यूज किया। फिर इस पर्टिकुलर लोकेशन पे देखिए स्टार एरे मीन्स स्टार एरे, इसके बाद फिर वैल्यू हमारी क्या है 3 आने के बाद फिर से मीन्स इसके थर्ड लोकेशन पे, फर्स्ट लोकेशन, सेकंड लोकेशन एंड थर्ड लोकेशन।
अब इस करेक्टर ptr 4 ptr यहाँ पर यूज़ किया, ptr मैंने यहाँ पर यूज़ किया था। अब इस ptr में 3 लोकेशन एंड 3rd लोकेशन के एरे को एक्सेस किया, फिर पॉइंटर को मैंने 1 इंक्रीज किया, ptr 2 को इंक्रीज किया। तो अब यहाँ से देखिए करंट टाइम पे स्टार 0 एंड 2, 0 के 2nd लोकेशन पे कौन सी वैल्यू होगी ये आपको डिस्प्ले करना है। ठीक है, यहाँ से मैंने 0 के 3rd लोकेशन पे कौन सी वैल्यू होगी, 0th रो एंड 3rd कॉलम। ठीक है, 0th रो 3rd कॉलम की वैल्यू इज द CHE। इसलिए PTR is point to the array of pointer to string, P1, P2, P3 are pointer to array of string, and array 3 is the array which contains pointer to array of string, pointer to array of function। अगर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी array को pointer को हम फंक्शन में भी पास कर सकते हैं। array means array of function means array which content is address of function। ठीक है, pointer to array of function means pointer to passing to such array। ठीक है, in other word we can say that the pointer to array of function is a pointer which is pointing to an array which contents are pointer to a function। अब यहाँ पर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या कहता है कि यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया लेंथ नाम का, जिसको मैंने एज ए आर्गूमेंट क्या पास किया, करेक्टर पॉइंटर पास किया। ठीक है, करेक्टर पॉइंटर पास करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, सेकंड मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन मैंने एक करेक्टर NA नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, एरे क्रिएट किया, जिसकी वैल्यू साइज 20 थी। साइज 20 होने के बाद मैंने एक int len नाम का फंक्शन क्रिएट किया, वेरिएबल क्रिएट किया। वेरिएबल क्रिएट करने के बाद फिर मैंने करेक्टर पॉइंटर क्रिएट किया p इक्वल टू NA मीन्स मैंने p में NA को असाइन किया, जो हमारी वैल्यू क्या करता है, एक्सेस करता है। अब फिर मैंने क्या किया, एक फंक्शन है, इस फंक्शन मैंने क्या किया, एरे को गेट किया। गेट्स में हमारे पास NA नाम के वेरिएबल एरे में जो भी यूजर ने इनपुट स्ट्रिंग किया वो स्ट्रिंग हमारे पास आ गए। स्ट्रिंग आने के बाद अब मैंने क्या किया, लेंथ नाम के फंक्शन को कॉल किया बाय पासिंग द आर्गूमेंट एज ए पॉइंटर। मीन्स मैंने p को पास किया, p पास करने के बाद फिर मैंने लास्ट में इसकी लेंथ को डिस्प्ले किया। अब देखते हैं कि लेंथ नाम के फंक्शन पे मैंने क्या किया। लेंथ नाम के फंक्शन पे क्या किया गया है कि पॉइंटर के वैल्यू को NA, जो भी मैंने NA1 को एक्सेस किया, इसकी नॉट इक्वल टू बैक जो मीन्स जब तक ये कंटिन्यू करता रहेगा जब तक उसकी वैल्यू नल नहीं हो जाती। फाइनली जब ये वैल्यू नल नहीं होगी तो फिर उसकी वैल्यू को मैंने एक एक कैरेक्टर के थ्रू डिस्प्ले किया। डिस्प्ले करने के बाद एक वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल लिया, जिसको मैंने एज ए काउंटर काउंट किया है। जब ये हमारा लूप कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद मैंने रिटर्न आई किया। रिटर्न आई क्या डिनोट करेगा कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मीन्स मेरे स्ट्रिंग पे कितनी कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं ये आपको डिस्प्ले कर देगा। पॉइंटर टू 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे, मैंने एक एरे क्रिएट किया जिसमें मैंने 7, 14, 21, 28, 35 एंड 42 एज ए आर्गूमेंट इसको पास किया। मीन्स ये 2x3 का एरे मेरे पास बना हुआ है। अब इसके बाद मैंने फिर से एक पॉइंटर क्रिएट किया 2x3 का, जिसमें मैंने असाइन किया एरे एम्परसेंट एरे, मीन्स एरे की वैल्यू को मैंने असाइन किया। अब ये असाइन करने के बाद अब मैंने क्या किया, फिर से मैंने एक्सेस किया -li। ठीक है, इसके बाद एरे के सेकंड लोकेशन, सेकंड रो के 0th कॉलम पे। ठीक है, सेकंड रो के 0th कॉलम के पॉइंटर पे वैल्यू क्या पड़ी है, ये वैल्यू हमें क्या हो जाएगी, डिस्प्ले करनी है। ठीक है, मीन्स ये हमारे पास सेकंड रो है, ये हमारे पास 0th कॉलम है। सेकंड रो अगर मैं देखें तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम ये, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम ये, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम ये, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम ये। ठीक है, सेकंड रो का सेकंड कॉलम है, सेकंड रो का थर्ड कॉलम है। ठीक है, तो मीन्स मैंने क्या, फर्स्ट रो का सेकंड रो, इस रो का फर्स्ट कॉलम, मीन्स 0th, फर्स्ट रो 0th 1, फर्स्ट रो का 0th कॉलम, हमारे पास वैल्यू है 28। हाउ टू डिक्लेयर पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल, राइट ए प्रोग्राम इन C विच प्रिंट्स द एडिशन ऑफ 2 नंबर यूजिंग पॉइंटर। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम कोई भी प्रोग्राम इसमें राइट करेंगे, कैसे भी कोई प्रोग्राम इसमें बनाते हैं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ठीक है, अब यहाँ से मैंने किया
a is equal to 20, ptr is equal to ampersand a, and here is the ptr1 is the double pointer which store the address of ptr. When we create the double pointer, we use the double star symbol. Then we access the printf values of a via variable percentage d comma a, printf value of a via pointer percentage d comma star ptr via double pointer percentage d and star star ptr1. Compile the program, run the program.